Hello guys, English Guru welcomes you in my new video. So let us continue our chapter reading. Up to here we have done our chapter reading. So today let us continue. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing. See, up to here we have read, and up to here, Murad, he stole the horse, and he came to Aram, and he asked Aram to come with him for horse riding. So Aram has got to know that Murad has stolen the horse, but he was not ready to believe this. Okay, so अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे आराम जो है ना वो स्टीलिंग की डेफिनेशन को के ऊपर फोकस करता है कि हमने घोड़ा भी चुराया नहीं है. ऑफ कोर्स जब घोड़ा जो चुराया जाता है उसकी चोरी करने की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअली ही वांट्स टू जस्ट सेव हिमसेल्फ, दैट ही वांट्स टू जस्ट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ हिज ट्राइब, बट ही ऑल्सो वांट्स टू राइड द हॉर्स. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. So यहाँ पे वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो स्टीलिंग ऑफ हॉर्स है वो मतलब राइडिंग के लिए सिर्फ स्टील करना, वो स्टीलिंग किसी और चीज़ की स्टील करने के बराबर नहीं होता है, जैसे कि मनी या और कुछ. ठीक है, और जितना मुझे पता है कि सिर्फ जो है ना ये तो स्टीलिंग होती ही नहीं है. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट If you are crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, अगर स्पेशली अगर हम क्रेजी हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली हॉर्सेस के लिए, जैसे मैं और मेरे जो कज़न मुराद हैं वो इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि हमें राइड करने के लिए हॉर्स चुराना हमें चोरी नहीं लगती है. इट वॉजंट स्टीलिंग, इट wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Okay, and according to Ram, हम चोरी उसको तब तक नहीं मान सकते जब तक हम उसे बेचने के लिए नहीं निकाल देते. एंड आई वॉज प्रेटी श्योर दैट वी विल नेवर डू इट, कि हमने हॉर्स को चुराया है, लेकिन एक्चुअली चोरी है ही नहीं. हमने तो सिर्फ हॉर्स को राइडिंग के लिए लिया है, और हम जैसे ही राइडिंग सीख लेंगे हम हॉर्स को वापस कर देंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स, सो दिस इज़ नॉट द स्टीलिंग. Let me put on some clothes, I said. And I said, let me put on some clothes. मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. All right, he said, but hurry. लेकिन जल्दी करना. I leaped into my clothes. So very quickly I just put on my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. Okay, and then what did I do? Like this is the window, so I jumped out of the window, and then on the horse I just leaped over the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of the town. So that year, especially that year, this Ram is telling that we were living at the edge of the town. शहर के हम बाहर रहते थे on Walnut Avenue. This is the name of the place where Ram was living. Behind our house was the country. Here the country means खुले खेत पड़े थे पीछे, मतलब जो है ना वो खेत जो fields हैं. वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस मीन्स जो तालाब वगैरह होते हैं जो इरिगेशन के काम आते हैं. एंड कंट्री रोड्स, और जो गांव के जो कच्चे रोड या पक्के रोड होते हैं कंट्री रोड्स होते हैं. सो हमारे घर के पीछे ये सब हुआ करता था. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, एंड विद इन 3 minutes वी वर, एज द हॉर्स वॉज रनिंग, सो विद इन 3 minutes वी वर on Olive Avenue, and then the horse began to trot. Trot means मस्ती से जो अपना जो हॉर्स है वो फुदकता है, वो उछल के चलता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रॉट. The air was new and lovely to breathe, and we were feeling the air was new and lovely to breathe, because after sitting on the horse we were feeling very fresh, and while the horse was running we could feel the air was very lovely. The feel of the horse running was wonderful, and the feeling of horse running, and we were riding the horse, it was really lovely feeling. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing.
ओके, सो मुराद ही वॉज कंसिडर्ड द क्रेजीएस्ट, सबसे ज़्यादा पागल मेंबर हमारे फैमिली का उसी को माना जाता था. सो ही स्टार्टेड टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रॉर, मीन्स हिज वॉइस वॉज नॉट गुड. मैं उसकी वॉइस को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो घोड़े पे बैठ के और वो अपनी तरफ से तो क्या कर रहा था, वो गा ही रहा था, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा था, वो रॉर कर रहा था. हिज वॉइस वॉज नॉट गुड, हिज वॉइस वॉज नॉट स्वीट. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, कहीं ना कहीं हर फैमिली में एक कहीं ना कहीं सनक होती है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. एंड अवर माई कज़न मुराद ही वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब एक उत्तराधिकारी है, मतलब जो है ना ये जो क्रेजीनेस है उसे विरासत में मिली हुई है. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसराव, एंड बिफोर हिम, मुराद से पहले जो जनरेशन में कौन था ऐसा क्रेजी, ही वॉज अवर अंकल खुसराव. एन एनॉर्मस मैन, काफ़ी हेल्दी है, हट्टा कट्टा इंसान है. वो द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एंड हिज हेड वॉज फुल ऑफ ब्लैक हेयर, एंड द लार्जेस्ट मस्ताश in the Sam Joaquin Valley, and this is the place where they live. A man so furious in temper, and our uncle Khusrau, he is so furious, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है. so irritable, बहुत ज़्यादा irritate करते हैं, सामने वाले को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं. so impatient, and he has no patience in him, that he stopped anyone from talking by roaring. जब भी कोई बात करता है, कुछ कहता है, तो उसको एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और सामने वाले को चुप करा देते हैं. so it is no harm, pay no attention to it. so this is his favorite line, this is the punching line of our uncle Khusrau. so whatever happens, he just speaks this line, and he just shuts the mouth of the person. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. okay, and he didn't just care about that what the person is talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop, where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire. okay, so actually what happened, once Uncle Khusrau, he went to the barber's shop. Actually he had to get his mustache trimmed. so his son, the name of the son is Arak, his son ran to his father to tell him that their house was on fire, मतलब घर में आग लग गई है. This man Khusrau set up in the chair and roared. तो सुनने के बाद जो खुसराव अंकल हैं उन्होंने क्या किया, वो चेयर पे अच्छे से बैठ गए. ओके, और उन्होंने रॉर करके कहा, ज़ोर से चिल्ला कर कहा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, इससे कोई बुरा नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो. द बार्बर सेड, देन after listening to it, the barber was very surprised. so he said that the boy says your house is on fire, कि बच्चा ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है. so Khusrau roared, and when the barber says this, then Khusrau again roared, enough, अब बहुत हो चुका, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कह तो रहा हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कोई भी ध्यान देने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, and here we consider that Murad has all the qualities as Uncle Khusrau has. okay, though he is not the son of Uncle Khusrau, but the natural descendant means according to the qualities, not according to the heredity. Although Murad's father was Zurab, and who is the father of Murad? Murad's father name is Zurab, who was practical and nothing else. Who was a practical but nothing else. He is a very practical man, बहुत काफ़ी समझदार इंसान है वो. That's how it was in our tribe. That's why, okay, a man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. okay, so अब ये कहना चाहते हैं राइटर कि हो सकता है कि जो ये सन होता है वो अपने फादर की तरह दिख सकता है, फिजिकली अपीयरेंस हो सकती है, जो उसके मास है, जो मतलब उसकी बॉडी है, वो अपने फादर की तरह हो सकती है, बट इट रियली डजंट मीन कि उसका जो नेचर है, जो उसके तौर तरीके हैं, जो उसके अंदर संस्कार हैं, वो भी अपने पिता की तरह ही हो. ओके, हियर द केस इज क्वाइट डिफरेंट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ spirit of our tribe had been
फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। अब हमारी जो ट्राइब है ना, हमारी ट्राइब में यही होता है कि जो स्पिरिट्स मतलब जो नेचर है वो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होता है। कैप्रिशियस मतलब अनप्रडिक्टेबल होता है, एंड वेग्रेंट मतलब अनसेटल्ड होता है, दैट यू कांट से दैट हु सन विल बी लाइक हुम। तो अगर मेरे फादर हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेरे फादर की क्वालिटीज़ ही मेरे अंदर किसी और की क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं। मीन्स हियर इन आवर ट्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन। सो वी रोड एंड माई काजन मुराद सैंग। ओके, तो हम अपना रोड कर रहे थे, हम हॉर्स को राइड कर रहे थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। अभी हम उन खेतों में ही थे, पुराने खेतों में ही थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged। ओके, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नेबर्स के फार्म्स वगैरह हैं। we let the horse run as long as it felt like running। और हमने क्या कर दिया, हॉर्स को खुला छोड़ दिया। मीन्स we didn't just try to just hold him। ओके, his harness होती है जिससे हम घोड़े को काबू करते हैं, जो वो उसके नाक में और जो मुंह में से निकल के जो रस्सी निकल के आती है। ओके, सो we didn't just force the horse that how to run। Okay, it was just running as it was feeling। At last my cousin Murad said get down। और लास्ट में मेरे cousin मुराद ने मुझे क्या बोला कि नीचे उतर जाओ, I want to ride alone। मैं अकेले घोड़ा जो है ना घुड़सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked also। Okay, so I also asked that will you let me ride alone? क्या तुम मुझे भी अकेले ही घोड़ा चलाने दोगे, घोड़ा राइड करने दोगे? That is up to the horse। My cousin said get down। और मेरे कज़न मुराद ने मुझे क्या आंसर दिया कि ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, सो द हॉर्स विल लेट मी राइड। आई सेड, तो मैंने क्या बोला कि दैट हॉर्स विल लेट मी राइड, हॉर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हॉर्स मुझे राइडिंग करने देगा। वी शेल सी। देन ही सेड कि चलो देखेंगे, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। और अब मुराद क्या कहता है कि भूलो मत, मेरा तो घोड़ों के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन जाता है। आई हैव अ वे मीन्स आई नो हाउ टू हैंडल द हॉर्सेस, आई नो हाउ टू टैकल द हॉर्सेस वेल। आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। कि जैसे तुम्हारा जो है ना घोड़ों के साथ अच्छा रिश्ता है, उसी तरीके से मेरा भी बहुत अच्छा रिश्ता है। सो यू प्लीज़ डोंट वरी, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो। एंड मुराद सेड कि चलो मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है, ओके, और उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम्हारा भी घोड़ों के साथ इतना ही अच्छा व्यवहार हो, इतना अच्छा तरीका हो। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। All right, I said, but remember you've got to let me try to ride alone। And then I remembered him that made him remember that he had to let me ride alone। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted। अब मैं नीचे उतर गया और मेरे जो cousin मुराद है उसने एड़ियाँ जो है ना वो घोड़े को लगाई and shouted वज़ायर means as you know that both the boys they were Armenian, so in the Armenian language only Murad said वज़ायर means run। So run। The horse stood on his hind legs। तो horse जो है ना वो क्या है, उसके पीछे वाले legs पे इस तरीके से पीछे वाले legs पे खड़ा हो गया और फिर उसने and burst into a flurry of speed। और अचानक से गोली की तरह इतनी तेज गति से वो चलने लगा। That was the loveliest thing I had ever seen। माई कज़न मुराद। और जिस तरीके से घोड़ा एकदम से पीछे के रंगों पे खड़ा होके और एकदम से आगे तरफ बिल्कुल बुलेट की तरह वो भागा, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। ओके, तो मेरा जो कज़न मुराद है ही रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। तो उसने एक फील्ड था ड्राई ग्रास का, वहाँ से लेके एक इरिगेशन डिच तक क्रॉस द डिच, फिर डिच को क्रॉस किया, गड्ढे को क्रॉस किया। ओके, द हॉर्स एंड द 5 minutes लेटर रिटर्न। और 5 मिनट के बाद वो वापस आ जाता है ड्रिपिंग वेट और काफ़ी भीगा हुआ होता है। द सन वॉज कमिंग अप। अब क्या है कि सनराइज
रियलाइज होने लग गया है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. एंड आफ्टर मुराद आई सेड दैट इज माई टर्न. देन माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से नीचे उतर गया. राइड, ही सेड, उसने कहा कि चलो तुम राइड करो. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव. और मैं जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठा और मेरे अंदर थोड़ा सा डर तो आ गया, एक अजीब सा डर मेरे अंदर आ गया था. ओके, बट द हॉर्स डिड नॉट मूव. किक इन टू हिज मसल, माई कजन मुराद सेड. और उसने मुझे कहा कि जैसे मैंने उसके मसल्स को किक किया था, जैसे मैंने हील किया था इसको, इसी तरीके से तुम भी किक करो. What are you waiting for and what are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about. और हमें घोड़े को वापस भी लेके जाना है इससे पहले कि सब जाग जाएं, because they have stolen the horse. Of course they were afraid of it, that if somebody would just see it that the horse is with us, then there will be a problem, there will be a big problem for us and for our tribe. So it's done for today and we are going to meet the next day. Till then, thank you and have a nice day. Goodbye.